میری مراد جامعہ اسلامیہ ممرہ کے استاد حدیث فضیلت الشیخ عرفان اقبال نوری مدنی حفظہ اللہ سے ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ شیخ مائک پر آئیں، اور آپ کا موضوع جو ہے محرم الحرام اور واقع کربلا، اس پر آپ گفتگو فرمائیں گے کہ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر من نکالو تماشا حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ مائک پر آئیں اور اس موضوع کا پوسٹ مارٹم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 هرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش پاک پروردگار کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ بادہو کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انس و جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔
जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत का खात्मा किया, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को मुकम्मल किया। मेरे भाइयों, जहां पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करें। आज का जो मौजू या जिस मौजू का इंतखाब मेरे लिए किया गया था, वो उन्वान है, वो मौजू है मुहर्रमुल हराम की हकीकत और करबला की हकीकत। इन दोनों हकीकतों के हवाले से आपके सामने अपनी इल्म के मुताबिक कुछ बातें रखने की जसारत कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुहर्रमुल हराम की हकाइक और इसी तरह से करबला की हकीकत को समझने और इसी तरह से जो उसके अंदर गलत फहमियां और झूठे अफसाने बयान किए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम चीजों से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये बच्चों को जरा खामोश कराइए, बहुत शैतानी कर रहे हैं इब्तिदा से लेकर के जो है, इनको जरा अलग अलग कर दीजिए। कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के अंदर महीनों के ताल्लुक से कुछ बातें रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि साल को जो 12 महीनों के अंदर बांटा गया, ये किसी माहिर फल्कियात की तरफ से नहीं, या किसी साइंसदा और किसी माहिर जुग्राफिया की तरफ से नहीं, बल्कि ये साल को जो 12 महीनों के अंदर बांटा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बांटा। और इसके तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इशारा किया कि महीनों की गिनती अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कितनी है, 12 है। और ये उसी दिन से है जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीनों आसमान की तख्लीक फरमाई, और उस 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये कुरान करीम का अपना एक उसलूब है कि बहुत सारी चीजों को कुरान करीम ने इजमाल के साथ बता दिया, उसका जो डिटेल है, उसकी तफसील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका के अंदर बयान किया। कुरान करीम ने इशारा किया कि अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है, और उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन है, इस इबहाम की तफसील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस के अंदर बयान कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है, जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब तफसीर के अंदर जिक्र कर दिया है। रिवायत है कि अनबी बकरत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौम ख़लक़ल्लाहु समावाति वल अर्दा अस्सनतु 12 शहरन मिनहा 4 हुरुम 3 मुतवालियात ज़ुल्क़ादती व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमाद व शाबाना अखरजुल बुखारी फी किताब तफसीर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये जमाना घूम फिर करके फिर उसी जगह आ जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि साल ये 12 महीनों का होता है। उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, और 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाम बता दिया। पहला नाम जुल्कादा है, दूसरा महीना जुल्हिज का है जिसमें हज किया जाता है, और तीसरा महीना मुहर्रम है जो अभी फिलहाल चल रहा है। आज मुहर्रम की 7वीं तारीख है। इसी तरह से रजबुल मुरज्जब का महीना, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 4 महीने मुअज्जम हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में। लिहाजा हमें इन 4 महीनों की हुर्मत को समझने की जरूरत है। इसके हुर्मत को हम पामाल ना करें, इसके तकद्दुस को हम और आप पामाल ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इसी आयत करीमा के अंदर बयान फरमा दिया कि इस महीने की हुर्मत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है कि इन महीनों में अपने नफ्सों पे जुल्म मत करो, किसी को मारो नहीं, किसी को डांटो नहीं, किसी को गालियां नहीं दो, किसी पे शब्बो शतम नहीं करो। अल्लाह के जो मनहियात हैं, मनहियात से दूर रहो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे और दूर रहो। इसका यह मतलब नहीं है कि साल
के 12 महीनों में सारी बुराइयां करते रहो। बुराई बुराई है, गुनाह गुनाह है। मनहियात से इज्तनाब करना साल के 12 महीनों में जरूरी है, लेकिन खुसूसी तौर से इन महीनों में उन तमाम बुराइयों से रुकना है। क्योंकि जब कोई चीज मुमताज होती है, जब कोई चीज अहम और मुकद्दस होती है, तो उस महीने में अगर कोई आदमी बुराई करता है तो उसके गुनाह का तनासुब भी बढ़ा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन अगर कोई मस्जिद के अंदर झूठ बोले तो वहां गुनाहों का तनासुब ज्यादा हो जाता है। झूठ बोलना गुनाह है। कोई हरमे मक्की के अंदर झूठ बोले तो उसका गुनाह कुछ और है, हरमे मदनी में बोले उसका गुनाह कुछ और है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? इमाम मुंदिरी रहमहुल्लाह ने तरगीब व तरहीब के अंदर एक रिवायत नकल की है, जिस रिवायत का इशारा यह है कि अगर कोई आदमी जिसकी तकद्दुस और हुर्मत रब के यहाँ मुसल्लम हो, रब के यहाँ वो चीज मुअज्जम हो, रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हुर्मत बयान की हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी अजमत बयान की हो, और उस अजमत की वजह से उस अजमत को अगर कोई पामाल करता है, उस जो है हुर्मत को, उस तकद्दुस को अगर कोई पामाल करता है, तो उसके गुनाहों के अंदर इजाफा कर दिया जाता है। at-तरगीब व तरहीब की रिवायत है कि अनिल मिक़दाद इब्न अस्वद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तक़ूलून फ़ी ज़िना क़ालू हरामुन व हर्रमहुल्लाहु व रसूलुहु इला यौमिल क़ियामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन यज़नी ar-रजुलु मिन अशर निस्वतिन ऐसरु अलैहि मिन अन यज़निया मिन हलीलत जारिही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तक़ूलून फ़ी सरिका क़ालू हरामुन हर्रमहुल्लाहु व रसूलुहु इला यौमिल क़ियामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन यस्रिक़ ar-रजुलु मिन अशर अबियातिन ऐसरु अलैहि मिन अन यस्रिका मिन जारिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहुल मुंदिरी फ़ी तरग़ीब व तरहीब व सह्हहुल अलबानी। इमाम अलबानी से रिवायत को सही करार दिया है। हजरत मिक़दाद बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा से कहा कि ज़िना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ज़िना किसे कहा जाता है? ज़िना का हुक्म क्या है? सहाबा ने कहा ज़िना हराम है और क़यामत की सुबह तक ये चीज हराम रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आदमी का 10 औरतों से ज़िना करना आसान है बनिस्बत पड़ोसन की औरत, पड़ोसी की औरत या पड़ोसी की बहू या पड़ोसी की बेटी से। यानी अगर कोई आदमी 10 औरतों से ज़िना कर लेता है तो उतना बड़ा गुनाह और पाप उसे नहीं मिलता है जितना कि गुनाह उसको अपनी पड़ोसन के साथ ज़िना करने से मिलता है, जितना गुनाह पड़ोसी की बेटी के साथ करने से ज़िना करने से गुनाह मिलता है। ऐसे ही चोरी के बारे में पूछ लिया, कहा चोरी का हुक्म क्या है? कहा यह हराम है, क़यामत की सुबह तक चोरी हराम रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदमी 10 घरों के अंदर चोरी कर ले उसे उतना गुनाह नहीं दिया जाएगा जितना कि अकेले अगर पड़ोसी के घर में डाके डाल देता है तो उसको गुनाह दिया जाएगा। इस हदीस से इशारा मिलता है, इस हदीस से इशारा मिलता है कि अगर कोई मकामात मुकद्दस हो और इसी तरह से उसके तकद्दुस को कोई पामाल करता है या जिस चीज की अजमत बयान की गई हो, हुर्मत बयान की गई हो, अब अगर उसको कोई पामाल करता है तो उसके गुनाहों के अंदर भी इजाफा होता है, गुनाहों का तनासुब बढ़ा दिया जाता है। लिहाजा ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इन महीनों की हुर्मत को पामाल नहीं करना है, मनहियात से शदीद इज्तनाब करना है, मामूरात पे शिद्दत से अमल करना है ताहम अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करे। इन हुर्मत वाले महीनों में यहां तक कि अहले अरब जाहिलियत में अगर किसको कोई आदमी किसी के बाप को कत्ल कर देता तो उसका बेटा मुहर्रम के महीने में बदला नहीं लेता था, इस वजह से कि कहीं मुहर्रम की हुर्मत पामाल ना हो जाए। तो मुहर्रम की हुर्मत हमें पामाल नहीं करनी है, जैसा कि आज शिया पामाल कर रहे हैं, रवाफिज पामाल कर रहे हैं, नवासिब पामाल कर रहे हैं, और सुन्नियों के भेष में बड़े सारे मुसलमान जो है इस महीने की तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। कोई सहाबा की अदालत पे डाके डालता है, कोई उनको हदफे तनकीद का निशाना बनाता है, कोई सहाबा को गालियां देता है, न जाने कैसे कैसे तबर्रे और न जाने कैसे कैसे छिछोरापन और न जाने क्या क्या हरकतें की जाती है। इन तमाम चीजों से हमें दूर रहना है और इस महीने की जो हुर्मत है उसे पामाल नहीं होने देना है। मेरे भाइयों,
یہ मुहर्रम, इस मुहर्रम की हुर्मत और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर से इस महीने के रोजे रखने का क्या दिया है, हुक्म दिया है। रमजान के महीने के रोजे के बाद सबसे अफजल रोजा कौन सा रोजा है? अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा है। मुहर्रम की अजमत के लिए सिर्फ इतना ही जान लेना काफी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत ज़ाते बारी ताला की तरफ किया है, अल्लाह की तरफ किया है। और चीजों से और निस्बत से चीजें मुमताज हो जाती है, उठनी है, लेकिन जब नाकतुल्लाह कह दिया जाता है तो उसकी अजमत बढ़ जाती है और उसके साथ छेड़खानी किया गया तो रब ने अजाब भेज करके पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो निस्बत से चीजें मुमताज हो जाती हैं। मुहर्रम के महीने की अजमत और अहमियत के लिए इतना जाने लेना काफी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत जनाबे मुहर्रम, इस महीने की निस्बत ज़ाते बारी ताला की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ किया है। बतौर दलील ये हदीस सुने, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़्ज़लुस सलाति बाद फ़रीदत सलातुल लैल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिस सियाम। इमाम मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। पूरे मुहर्रम का रोजा रखना मशरू है। रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने के मुहर्रम के रोजे हैं। इससे इशारा मिलता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजा कब रखें? मुहर्रम के महीने में रखें। नफली रोजे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के महीने मुहर्रम के अंदर हम और आप रखा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जब रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा मुहर्रम का रोजा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजा ज्यादा क्यों रखते थे? जैसा कि इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने किताबुस सियाम के अंदर जिक्र किया है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूला ला युफ्तिरु व युफ्तिरु हत्ता नक़ूला ला यसूम व मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमजान व मा रअयतुहु अक्सर सियाम मिनहु फी शाबान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजुल बुखारी फी किताबिस सोम। बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब रोजा रखते थे, इतना रोजा रखते थे कि हमें लगता था कि अब इफ्तार नहीं करेंगे, और जब आप रोजा छोड़ देते तो ऐसा महसूस होता कि अब आप रोजा नहीं रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल किसी महीने का रोजा नहीं रखा सिवाय रमजान के, और सबसे ज्यादा रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते थे। तो पता यह चला कि शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल कसरत से रोजा रखते थे, और फजीलत बयान कर रहे हैं कि रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। अब बज़ाहिर दोनों हदीसों के अंदर टकराव है। अब इसकी तत्बीक क्या है, उलमा ने तौफीक क्या बयान किया है? उलमा जिक्र करते हैं, इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं इसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल को मुहर्रम की फजीलत का इल्म आखिरी उम्र में हुआ, और इसी तरह से बीमारी और सफर की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के रोजे ज्यादा नहीं रख सके। और बाज अहले इल्म जिक्र करते हैं कि शाबान के अंदर रोजा रखना यह अल्लाह के रसूल का फेल है, और मुहर्रम के रोजों की फजीलत जो है यह हदीस कौली है, और हदीस कौली पर जो है हदीस फेली पर हदीस कौली को तरजीह दी जाती है। यानी हदीस कौली का मकाम कुछ और है और हदीस फेली का मकाम कुछ और है। यह तत्बीक उलमा ने बयान की। सवाल पैदा होता है कि इस मुहर्रम जो है इसके रोजे का हुक्म क्या है? तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कबलल हिजरा, हिजरत से पहले ये रोजे वाजिब थे और हिजरत के बाद ये रोजे मुस्तहब हो गए। इसकी दलील क्या है? इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ही किताबुस सियाम के अंदर रिवायत नकल किया है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कानत कुरैशुन तसूमु यौम आशूरा फिल जाहिलिया व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुहु फलम्मा हाजरा इलल मदीना सामहु व अमरा बिसियामिही फलम्मा फुरिदा शहरु रमजान काला मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु अखरजु मुस्लिमुन फी किताबिस सियाम। इमाम मुस्लिम ने किताबुस सियाम के अंदर जिक्र किया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जाहिलियत के अंदर कुरैश मुहर्रमुल हराम यानी 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, और इसी 10 मुहर्रम को काबा का गिलाफ चेंज करते थे और दूसरा गिलाफ चढ़ाते थे और रोजा भी रखते थे।
अल्लाह के रसूल भी रोजा रखते थे, सहाबा को रोजा रखने का हुक्म देते थे, लेकिन जब हिजरत करके मदीना आ गए और रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया तुम में से जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे रोजा ना रखे। यानी अल्लाह के रसूल ने अखफ अस्कल से अखफ की तरफ जो है रहनुमाई कर दी कि जो शख्स रखना चाहे रखे, ना रखना चाहे ना रखे, लेकिन इसके इस्तेहबाब पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। फिर ये सवाल पैदा हुआ, खुलासे कलाम ये निकला कि मुहर्रम का रोजा मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है। क्यों रखा जाता है? अभी किसी मोहतरम ने तकरीर किया था, उसके अंदर इशारा किया था कि ये रोजा क्यों रखा जाता है। बुखारी किताब सोम की रिवायत है कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़दिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना फ़रअल यहूदा तसूमु यौम आशूरा फ़क़ाल मा हादा क़ालू हादा यौमुन नज्जा नज्जल्लाहु बनी इस्राईल मिन अदुइहिम फ़सामहु मूसा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अहक्कु बि मूसा मिनकुम फ़सामहु व अमर बिसियामिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखरजुल बुखारी फी किताबी सोम। बुखारी की रिवायत है और रिवायत करने वाली आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए तो देखा यहूदी रोजा रखे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों रोजा रखे हो? तो कहते हादा यौमुन स्वाले, ये तो मुबारक दिन है। इसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौनियों के जुल्म से मूसा और उनकी कौम को नजात दिया था। उसी नजात की खुशी में मूसा ने रोजा रखा था और मूसा की कौम ने रोजा रखा था, इसलिए हम रोजा रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुमसे कहीं ज्यादा ताल्लुक मेरा हजरत मूसा से है। अल्लाह के रसूल ने खुद रोजा रखा और सहाबे किराम को रोजा रखने का हुक्म दिया और कहा अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम को रोजा रखूंगा ताकि यहूदियों की क्या हो सके, मुखालिफत हो सके। यहूद और नसारा की कदम कदम पे हमें मुखालिफत करनी चाहिए। अगर हमें मदरसों में फीस की जरूरत पड़ जाए तो चाहे 1 रुपया फीस लो, लेकिन बच्चों से फीस लो। बहुत सारी चीजें जो है इफरात और तफरीत के लोग शिकार हैं। कहते हैं नसरानी फ्री में तालीम देते हैं। मैं कहता हूं मुखालिफत नसारा यही है, वो फ्री में अगर तालीम देते हैं तो 1 रुपया तुम अपने बच्चों को बच्चों से फीस लो, या आपके बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ते तो फीस दो ताकि यहां पे भी उनकी क्या हो सके, मुखालिफत हो सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 9 को भी रोजा रखूंगा ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो सके। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़ा आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा ना रख सके। तो ये रोजे के ताल्लुक से चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे भाइयों, इस रोजे की फजीलत क्या है? छोटी सी एक और हदीस मुस्नद अहमद के हवाले से सुन ले, जिसकी सनद को शोएब अर्नऊत ने सही करार दिया है कि अन अबी कतादतल अंसारी क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन यौम अरफा फ़क़ाल कफ़ारतु सनतैन व सुइला अन यौम आशूरा फ़क़ाल कफ़ारतु सनतिन अखरजू अहमद फी मुस्नदिही व सहह इस्नादु शोएब अर्नऊत। मुस्नद अहमद की रिवायत है। हजरत अबू कतादा अंसारी बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से पूछा गया अरफा के रोजे की फजीलत क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे का क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1 साल के गुनाह को क्या कर दिया जाता है, मुआफ कर दिया जाता है। इससे पता चला कि मुजर्रद 1 रोजा 10 मुहर्रम को रख लेने से अल्लाह 1 साल के सगीरा गुनाहों को क्या कर देता है, मुआफ फरमा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप इस महीने में रोजे का एहतमाम करें और रमजान के रोजों के बाद महीने के एतबार से देखें सबसे अफजल महीना मुहर्रम का महीना है, और दिन के एतबार से देखें तो दिन में जो है रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल दिन अरफा का दिन है। इस वजह से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं और इसी तरह से फिर उसके बाद मुहर्रम है, क्योंकि उस 1 रोजा रखने से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर देता है, 1 साल के सगाइर को मुआफ फरमा देता है। इस महीने के अंदर बेशुमार बिदअतों खुराफात को मेरे भाइयों अंजाम दिया जाता है। उन्हीं बिदअतों खुराफात में से एक बिदअत और खुराफात क्या है, सहाबा को गालियां देना। मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर सहाबे किराम को गालियां दी जाती है, उनको तनकीद के खरात पे रखा जाता है, उनकी अदालत को चूर चूर किया जाता है, उनकी सकाहत को दागदार किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर हम कसरत से सहाबा के मनाकिब और फजाइल को बयान करें ताकि लोग सहाबे किराम की अहमियत और फजीलत को, उनके मनाकिब को जाने। आज हमारे मुसलमान अपने आप को सुन्नी कहने वाला, अपने आप को अहले हदीस कहने वाला, कहीं हजरत मुआविया
को बुरा कहता है, कहीं उनके बेटे को बुरा कहता है, और सहाबे किराम की अदालत पे डाके डालता हुआ मुसलमान का बच्चा नजर आता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस महीने में जहां पे अबू बकर को गाली दी जाती हो, उमर को गालियां दी जाती हो, उस्मान को गालियां दी जाती हो, मुगीरा इब्ने शोबा को गाली दी जाती हो, मुआविया को गाली दी जाती हो, यजीद पे जो है तहमत लगाई जाती है, और सहाबा की पूरी जमात को गालियां दी जाती है। इन गालियों, इन एक्शन का रिएक्शन हमारा ये होना चाहिए इस महीने में। कसरत से हम मनाकिबे अबी बकर बयान करे, मनाकिबे उमर बयान करे, मनाकिबे उस्मान बयान करे, मनाकिबे अली बयान करे, मनाकिबे मुआविया बयान करे। ये हमारी और आपकी मेरे भाइयों जिम्मेदारी है कि कसरत से सहाबा के मनाकिब को सुने, ताकि जो है हमारा जहन जो खराब किया जाता है गालियां दे करके, हमारे बच्चे अपने जहन में शक और रैब डालते हुए नजर आ रहे हैं और सहाबा के ऊपर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अहले हदीस बच्चा, बड़ी माजरत के साथ वक्त बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, शेख मोहतरम भी बैठे हुए हैं, एक अहले हदीस बच्चा जो मदरसे से पढ़ा हुआ है वो आकर के कहता है मौलाना एक हदीस के अंदर है कि जब मुआविया को तुम मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर दो, और इस हदीस पे बाज उलमा ने सही का हुक्म लगाया है, आपकी क्या राय है? मैं मुआविया को अच्छा समझता था, लेकिन जब ये हदीस मेरी निगाह से गुजरी मैं मुआविया को अच्छा नहीं समझता। अहले हदीस बच्चा है, मदरसे में पढ़ा हुआ है, मुआविया के हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से उसका जहन साफ नहीं है। जब मैंने उससे कहा कि मेरे भाई ये हदीस, पहली बात तो इस हदीस का रावी अम्र इब्ने उबैद है जो झूठा और गढ़ने वाला है, रिवायत को बना करके जो है रसूल मोहतरम की तरफ मंसूब कर देता था, ये रिवायत सही नहीं है। और अगर इस रिवायत को हम सही भी मान ले तो इस मुआविया से मुराद मुआविया इब्ने अबी सुफियान नहीं है, इस मुआविया से मुराद मुआविया बिन बातूह है या बातौह है, जिसके बारे में जिसने कहा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मिंबर रसूल पे पाखाना कर दूंगा। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा जब भी ये मिंबर पे चढ़े तो इसको कत्ल कर दो। बहरहाल ये लंबा किस्सा है। बहरहाल मुआविया से मुराद वहां मुआविया इब्ने अबी सुफियान नहीं है, वहां मुआविया वो बदबख्त है, वो मुनाफिक का सरदार है जिसने कहा था मैं मिंबर रसूल पे बैठ करके पाखाना करूंगा। उस मुआविया को कत्ल करने का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था, मुआविया इब्ने सुफियान को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। ये सारी चीजें हमारे ज़हन दिमाग के अंदर डाली जाती है। मेरे भाइयों सहाबा का मकाम बहुत बड़ा है, उस तरफ मैं इशारा नहीं करूंगा। मेरे शेख मोहतरम शेख अब्दुल हकीम मदनी से मेरी गुजारिश है कि वो चंद मिनट मेरे बाद सहाबे किराम की मनकबत और उनके फजीलत पर कुछ इशारा करे, ताकि सहाबा का मकाम और मर्तबा खुल करके हमारे सामने आ जाए। मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाता हूँ। इस महीने के अंदर मातम और नौहा किया जाता है जो शरीयत इस्लामिया के अंदर हराम और नाजायज है। बुखारी किताबुल जनाइज की रिवायत है कि अन अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दा बिदावल जाहिलिया, जो सीना को भी करे अपने गालों पे तमाचा मारे, जाहिलियत की पुकारे, हमारी शरीयत से उसका ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्ने माजा किताबुल जनाइज की रिवायत है कि नबी मालिक अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नियाहतु मिन अमरिल जाहिलिया व इन्नन नाहियता इज़ा मातत लम ततुब क़तअल्लाहु लहा सियाबम मिन क़तिरानिन औ दिरअम मिन लहबिन नार, अखरजू इब्ने माजा फी किताबिल जनाइज व हसनहुल अलबानी। अबू मालिक अशअरी बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि नौहा करना ये जाहिलियत के कामों में से एक काम है। अगर नौहा करने वाली मर्द या औरत अगर मरने से पहले उसने तौबा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम के अंदर डामर का कपड़ा पहनाएगा और फिर उसमें आग लगाएगा। और डामर की ये खासियत है कि अगर उसमें आग लगा दिया जाए, पानी भी गिराते रहो, आग बुझती नहीं है। अल्लाह उसे डामर का कपड़ा पहनाएगा और उस डामर के कपड़े में आग लगा करके उसको जहन्नम के अंदर छोड़ देगा। जो दुनिया के अंदर नौहा और मातम करता था, सीना को भी करती थी, अपने गिरेबान को चाक करती थी, ऐसे नौहा करने वालियों का या नौहा करने वालों का अजाब जहन्नम के अंदर यह है कि डामर का कपड़ा पहना करके उसको आग लगा करके अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, अब ये चंद बातें थी जो इस महीने के अंदर खुराफात और बिदआत को अंजाम दिया जाता। वक्त इजाजत नहीं है कि तफसील के साथ जो है मैं बहुत सारी बातों को रखूं। मैं डायरेक्ट अपने वादे के मुताबिक करबला की हकीकत आपके सामने चंद मिनट के अंदर रख करके अपनी बात को खत्म करता हूं। करबला कैसे वाक़े हुआ, करबला के अंदर क्या क्या किसका किरदार रहा है, वो मैं बड़ी सरसरी तौर पे आपके सामने रखूंगा ताकि पूरी हकीकत जो है आपके सामने खुल करके आ जाए और हमारे
ज़हन और दिमाग के अंदर जो गंदगी और गलाजत भरी हुई है, जो नजासत और पलीदगी भरी हुई है, वो निकल जाए और हकीकत हमारे सामने आ जाए। करबला की हकीकत जानने से पहले सबसे पहले हम और पीछे चलते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पे बैठते हैं और उनकी मुद्दत खिलाफत 2 साल 2 महीना रही। सैयदना अबू बकर की वफात के बाद मसनद खिलाफत पे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, जो 10 साल 9 महीना खलीफा रहे। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ कैसे शहीद किया गया मेरे भाइयों। और आज लोग कहते हैं कि हम मुहर्रमुल हराम के रोजे इस वजह से रखते हैं क्योंकि उस दिन हजरत हुसैन शहीद हुए थे, अली असगर और अकबर शहीद हुए थे। मैं कहता हूं शहादत हुसैन की वजह से 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखा जाता है। खुदा की कसम, अगर शहादत इल्लत होती, शहादत वजह होती रोजा रखने की, तो हम सबसे पहले शहादत उमर के दिन रोजा रखते। अगर अल्लाह अकबर, अगर शहादत वजह होती तो हम उस्मान गनी की शहादत पे रोजा रखते, हजरत अली की शहादत पे रोजा रखते, अल्लाह के रसूल के चचा की शहादत पे रोजा रखते, जिसे अल्लाह के रसूल ने सैयदुश शुहदा के लक़ब से नवाजा। मेरे भाइयों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? 10 साल 9 महीना खलीफा रहे। जब उनकी शहादत हो जाती है, मसनद खिलाफत पे उस्मान गनी आते हैं। उस्मान गनी को साजिश करके, उस्मान गनी को साजिश करके बलवाइयों ने बेदर्दी के साथ खाना और पानी रोक करके सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया। सैयदना उस्मान की मुद्दत खिलाफत 11 साल 11 महीना रही। फिर उसके बाद सैयदना अली मसनद खिलाफत पे आते हैं और 4 साल 9 महीना सैयदना अली खलीफा रहे। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात कैसे होती है? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम नामी एक शख्स जब आप फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे तो रास्ते में पकड़ करके ज़बह कर दिया। जब सैयदना हसन को पता चला मेरे वालिद मोहतरम को कूफा वालों ने शहीद कर दिया है, तो वो दो संदूक लेकर के पहुंचते हैं और अपने अपने वालिद मोहतरम की लाश को लेकर के आते हैं। रास्ते में चोरों की एक जमात मिलती है और हजरत हसन से हाथापाई करके संदूक को छीन लेते हैं। और अली की कब्र कहां है? तारीख इससे खामोश है। बहरहाल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मसनद खिलाफत पे कौन आते हैं? आपके बड़े बेटे हसन इब्ने अबी तालिब। ये खलीफा बनते हैं। सन 40 का वाकया है। 40 में खलीफा बनते हैं। 6 महीना मसनद खिलाफत पे रहे। देखा कि खिलाफत संभाली नहीं जा रही है, फितने सर उठा रहे हैं। कहीं सबाइयों का फितना है, कहीं बलवाइयों का फितना है। बहरहाल फितने सर उठा रहे थे। इतने में उन्होंने हजरत अमीर मुआविया को बुलाया, क्योंकि अमीर मुआविया 20 साल तक, तकरीबन 20 या 19 साल जो है ये मुल्क शाम के गवर्नर रहे। और उसके बाद अमीर मुआविया की जो महारत सियासत के अंदर थी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा था, जो अक्ल दानिशमंदी रब ने अता किया था, किसी और सहाबी को नहीं अता किया था। हजरत हसन ने मुनासिब ये समझा कि जो 19 साल गवर्नर रहा हो उस शख्स को बुला करके ज़िमाम खिलाफत उसके हाथ में दे दिया जाए और खुद दस्तबरदार हो लिया जाए। हजरत हसन हजरत अमीर मुआविया को बुलाते हैं और उनके हाथ में खिलाफत को दे देते हैं, खिलाफत सौंप देते हैं। और ये तकरीबन 6 महीने का बात है। 41 के अंदर जो है हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैअत हो जाती है। आज लोग मुआविया को गाली देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप भी उनका जवाब दे देना कि अहले बैत में से हजरत हुसैन के भाई हजरत हसन जिससे राजी हो, आप जैसे अरे गैरे नत्थु खैरे के नाराज होने से उनकी जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हजरत आयशा ने कहा था ये सहाबा को गालियां देते रहे, उन गालियों के बदले अल्लाह उन्हें उन गालियों को नेकियों में तब्दील कर देगा। अमीर मुआविया से हजरत हसन राजी है, तुम्हारे नाराज रहने से कोई फर्क है उनकी जात पे नहीं पड़ता है। हजरत अमीर मुआविया 20 साल तक मसनद खिलाफत पे विराजमान रहे। हजरत अमीर मुआविया जब बूढ़े हो जाते हैं, हजरत अमीर मुआविया सहाबा से मशवरा करते हैं कि अपने बाद किसे खलीफा बनाया जाए। बहरहाल शुरू में हजरत अमीर मुआविया राजी नहीं थे, लेकिन चंद सहाबा के कहने की वजह से अपने बेटे यजीद
अपने बेटे यजीद को खलीफा बना देते हैं। उसकी वजह यह थी कि अरब के उस वक्त दो बड़े बड़े कबीले थे। एक कबीला कबीले मुजर था, दूसरा कबीला कबीले बनु कल्ब था। ये सबसे दोनों बड़े कबीले थे और ये कबीले अगर किसी के पक्ष में हो जाते थे तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि उसकी खिलाफ करे और उसके खिलाफ में जाएं। यही देखते हुए सहाबे किराम ने मशवरा दिया कि यजीद को खलीफा बना दिया जाए। उसकी वजह यह थी कि हजरत मुआविया की एक बीवी जिनका नाम मैसून बिनते बहदल है, ये कबीले कल्ब से थी, कबीले कल्ब से थी और इसी तरह से उन्हीं से हजरत यजीद पैदा हुए। और इसी तरह से जब एक तरफ दनिहाली रिश्ता है और दूसरी तरफ ददिहाली रिश्ता है, एक तरफ दादा कबीले मुजर से और इसी तरह से नाना और नानी कहां से, कबीले कल्ब से। तो अगर किसी शख्सियत पे तमाम लोगों का इत्तेफाक हो सकता था तो कौन थे वो हजरत यजीद थे। इसी वजह से हजरत यजीद को क्या कर दिया गया, खलीफा बना दिया गया और नामजद कर दिया गया। 26 रजब सन 61 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया की वफात होती है और 2 ही दिन के बाद 28 रजब सन 61 हिजरी के अंदर जो है हजरत यजीद के हाथ पे लोग बैअत करते हैं और उनको खलीफा घोषित कर दिया जाता है। चंद लोगों ने रिवायात, तारीखी रिवायात है कि बाज लोगों ने जो है बैअत नहीं की, जिसमें से अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत हुसैन का नाम आता है। बहरहाल ये सारी तारीखी रिवायत है, इसकी सेहत ये सही और गलत की तरफ मैं इशारा नहीं करता। हकीकी बात यह है कि इन्होंने बैअत से इनकार नहीं किया था। अब्दुल्ला हजरत हुसैन और इसी तरह से अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है रातों रात जो है मदीना से चल करके मक्का चले आते हैं और फिर वहीं से कूफियों ने साजिश किया। जब देखा कि हजरत हुसैन मक्का आ गए हैं तो अब मक्का आने के बाद जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहर जाते हैं। वहीं से कूफियों ने खत लिखना शुरू किया और हुसैन को कहा कि हम आपको खलीफा मानते हैं, आप यजीद से अच्छे हैं, आपके बाप यजीद के बाप से अच्छे हैं, आपका खानदान, ये सारी चीजें जो है वो हजरत हुसैन से जिक्र करते रहे, लेटर लिखते रहे, खुतूत पे खुतूत लिखते रहे और यहां तक कि 50 कूफी जो है खुतूत का थैला ला करके जो है हजरत हुसैन के पास रख दिया और कहा हम आपकी बैअत करने और आपको खलीफा मानते हैं, आपके अलावा हम किसी को खलीफा नहीं मानते हैं। बहरहाल मामले की जांच और पड़ताल के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बड़े भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ देख करके आओ हालात कैसे हैं। जब वो कूफा पहुंचते हैं 18,000 कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैअत कर लिया और मुस्लिम बिन अकील उस वक्त किसके घर में, मुख्तार बिन उबैद अस्सक़फ़ी के यहाँ ठहरे हुए थे जिसने बाद में नबूवत का दावा किया। हजरत नोमान इब्ने बशीर जो कूफा के गवर्नर थे वो समझाते रहे कि जो हजरत हुसैन के बाप के नहीं हुए, पूरी जिंदगी हजरत अली को सुकून से नहीं रहने दिया और बेदर्दी के साथ जिसने बाप को जिन लोगों ने शहीद कर दिया वो बेटे को सुख और चैन से कैसे रहने देंगे। बहरहाल हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने खत लिखा कि कूफी हमारे फेवर में है। बहरहाल जब बाद में कूफा का गवर्नर इब्ने जियाद को बना दिया जाता है, जो बसरा का वाली था उसे कूफा का भी गवर्नर बना दिया गया। वो कसरे खिलाफत में आता है और चढ़ करके 10-20 आदमियों को लेता है और उसके बाद सारे लोगों को धमकी देता है कि ऐ कूफियों तुम्हारी शरारत का मुझे बखूबी इल्म है। इतनी बात बोलनी थी कि तकरीबन कई हजार कूफी पीछे चले गए, सिर्फ 4,000 बचे और कम होते होते चंद ही अफराद बचे। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी इब्ने उरुआ के घर में जाकर के पनाह लेते हैं और फिर फैसला ये होता है कि दोनों को कसरे खिलाफत के सामने सूली पे लटका दिया जाए। मुस्लिम इब्ने अकील को वहां पे क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद शहादत से पहले मुस्लिम इब्ने अकील ने एक खत लिखा था अपने भाई हुसैन को, लेकिन वो खत जो है हुसैन को नहीं मिल पाया। हज करने के बाद 10 जिलहिज्जा हज करने के बाद हजरत हुसैन 72 नफूस पे मुश्तमिल काफिले को लेकर के रवाना हो जाते हैं कूफा की तरफ। जब रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां पे पता यह चलता है उमर बिन साद की कमान में एक लश्कर आता है और लश्कर वालों में से उमर बिन साद ने कहा कि ये खत लीजिए, मुस्लिम इब्ने अकील के ताल्लुक से उन्होंने
लिख करके आपको भेजा है। जब कूफियों का पूरा जो है पर्दाफाश हो गया तो अब हजरत हुसैन जो है अपना रास्ता बदल करके दिमश्क की तरफ जाने लगे, जो उस वक्त का दारुल खिलाफा था, जिसकी मसनद पे जो है हजरत यजीद बैठे हुए थे, वहां जाने लगे। बहरहाल रास्ते में चलते हैं, 50 कूफी हैं और उसके बाद फिर और कूफा के 200 लोग हुर की क़ियादत में आ जाते हैं। 250 कूफियों का लश्कर हजरत हुसैन के साथ करबला की तरफ होकर के और दिमश्क की तरफ रवाना हुआ। एक जगह है जिसे करबला के नाम से जाना जाता है। जब वहां पहुंचते हैं रात हो जाती है, ये शाम का मामला है और बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं ये दिन का मामला है। बहरहाल रात का मामला हो या दिन का मामला हो, जब ये कूफियों को मालूम था ये जो हमारे खतूत हुसैन के पास पड़े हुए हैं, जब ये दरबारे यजीद के अंदर पहुंचेंगे तो एक एक की सिग्नेचर और नाम वहां के अंदर उसमें लिखा हुआ है, जब यजीद को पता चलेगा तो हमारे सर को जो है हमारे बदन पे खड़ा नहीं छोड़ेगा। इस वजह से उन्होंने खतूत के थैले तलाशे, जब खतूत के थैले नहीं मिले तो उन्होंने खेमे हुसैन को आग लगा दिया और लड़ाई शुरू कर दी। हुकूमत की लश्करों को पता चला, आवाज आई कि लड़ाई हो रही है, शोर मचाया जा रहा है। उठते हैं, बहरहाल घमासान लड़ाई होती है। इधर कूफी लड़ रहे हैं, उधर हुकूमत की लश्कर आपस में सब लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहते उसी में सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। तो हजरत हुसैन को शहीद करने वाले ना यजीद के लश्कर वाले थे, ना उमर बिन साद के लश्कर वाले थे, ये वही हुर की क़ियादत में जो कूफी आए थे, वही कूफी जो है हजरत हुसैन को जो है शहीद करने वाले थे। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं यजीद ने वाकई में यजीद ने जो है हुसैन को कत्ल किया था। मैं कहता हूं एक तारीखी और सही रिवायत ला करके आप हमारे सामने पेश कर दे। और आप अहले बैत की बात करते हैं, अहले बैत में से किसी की एक आदमी की शहादत पेश कर दो जिसने कहा हो कि जो है कत्ल करने वाले हजरत यजीद के घराने वाले थे। आप दलील लेकर के आओ, हम उस दलील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस्से और कहानी पर हम एतमाद करने वाले नहीं है। मोहम्मद इब्ने हनफिया कौन है? हजरत अली के भाई है। जब इनके पास अब्दुल्ला इब्ने मुती आए, अब्दुल्ला इब्ने मुती ने कहा कि हजरत यजीद जो है शराबी है, नमाज तर्क करता है, अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है। तो हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया ने क्या कहा, मैं यजीद के दरबार में था, मैंने पाया वो नमाज भी पढ़ता है, मैंने पाया कि फिक्र के मसाइल और इसी तरह से तालिबे फिक्र भी है। जो तुम जिक्र कर रहे हो मैंने वो चीज उसके अंदर नहीं देखी, ये बिदाया व निहाया की इबारत है उसके अंदर मौजूद है मेरे भाइयों। तो कहने का मकसद यह है कि 10 मुहर्रमुल हराम को जिन्होंने शहीद किया, वो शहीद करने वाले कौन थे? जिन्होंने हजरत अली को कूफा में शहीद किया था, उन्हीं कूफियों ने मिलकर के हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। अब आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? इसकी दलील मैं आपको दूं, सही रिवायत है कि अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी नुअमिन अन्ना रजुलन मिनल आराब साल इब्न उमर अन दमिल बऊद युसीबु सौबा फकाला उन्जुरु हादा यसअलु अन दमिल बऊद वक़द क़तलु इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हसन वल हुसैन रैहानता मिनद दुनिया। अब्दुर्रहमान इब्न नौम बयान फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास इराक से चल करके एक आदमी सवाल करने आया कि अगर मच्छर का खून किसी के कपड़े में लग जाए तो खून और कपड़े का क्या हुक्म है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जवाब ना दे करके कहा, उन्जुरु हादा, इस लईन को देखो, बदबख्त को देखो, ये सवाल कर रहा है कि मच्छर अगर काट ले और उसका खून कपड़े के अंदर लग जाए तो कपड़ा पाक है या नापाक है? इन्हीं जालिमों इराकियों ने मिलकर के निवासे रसूल को मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद कर दिया। तब यह सवाल करने नहीं आया था कि खूने मोमिन का क्या हुक्म है, खूने मुस्लिम का क्या हुक्म है। यह इतना मासूम बन रहा है कि मक्खी और मच्छर के बारे में पूछने के लिए आया। दरअसल इन्हीं कूफियों ने, इन्हीं इराकियों ने मिलकर के निवासे रसूल को शहीद कर दिया। तब ये खूने मुस्लिम के बारे में पूछने नहीं आया। अब ये आकर के जो है दमे बऊस के बारे में पूछ रहा है। सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल को बयान फरमाते हुए सुना, इन्नल हसना वल हुसैन रैहानता मिनद दुनिया, हसन और हुसैन ये दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। इससे इशारा मिला और अब्दुल्ला इब्ने उमर के जवाब से जाहिर हो रहा है कत्ल करने वाले दिमश्की नहीं थे,
قتل کرنے والے عمر بن سعد کے لشکر والے نہیں تھے، قتل کرنے والے یہی عراقی تھے، قتل کرنے والے میرے بھائی یہی کوفی تھے۔ میں آپ کو رشتہ بتاؤں چند منٹ کے اندر میرے بھائیوں، حضرت یزید کا، حضرت حسین کا، حضرت معاویہ کا اور نبی کا رشتہ کیا تھا۔ حضرت معاویہ کی بہن ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے اور نبی کی بیوی ہے، اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ جناب محمد رسول اللہ کے سالے ہوئے سالے اور بہنوئی میں کتنی محبت ہوتی ہے، آپ تمام اس کے گواہ ہیں۔ دوسرا رشتہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسین اور معاویہ دونوں ساڑھو ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میسون بنت بہدل اور ایک عورت ہے جن کا نام رباب ہے۔ آپ ایک کتاب مبعث الرسول الی مقتل الحسین نامی عثمان الخمیس کی کتاب ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، پوری وہ کتاب پڑھ کر کے وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کسی اور کی کتاب کی طرف میں نہیں گیا۔ تو رباب ہیں، اور رباب اور میسون بنت بہدل دونوں چچیری بہن ہیں، اور اسی رباب سے حضرت سکینہ پیدا ہوئی۔ اس لحاظ سے دیکھو کہ میسون بنت بہدل اور اسی طرح سے رباب جو حسین کی بیوی ہیں، اس اعتبار سے کیا ہوئے رشتے میں؟ دونوں ساڑھو ہوئے ایک دوسرے، کیونکہ دونوں کی جو بیویاں ہیں دونوں چچیری بہن ہے۔ اب یزید کیا ہوئے؟ حضرت یزید کے حضرت حسین خالو ہو گئے، کیونکہ رباب خالہ ہوئی، اور خالہ کی وجہ سے حضرت حسین کیا بنیں گے؟ خالو بنیں گے۔ اتنی قربت ہے، اتنا قریبی حضرت حسین کے ہو کر کے، بھلا بتاؤ کوئی اتنا قریب ہو کر کے کوئی شخص اپنے خالو کو قتل کر دے؟ میں بار بار یہی کہتا ہوں، ایک صحیح روایت لے کر کے آ جاؤ، اہل بیت کی ایک صحیح شہادت لے کر کے آ جاؤ، خدا کی قسم آپ سے پہلے ہم اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسانے اور قصے پر ہم اعتماد کرنے والے میرے بھائیوں نہیں۔ اس لیے کربلا کے اندر جو واقعہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی، جو حادثہ پیش ہوا، اس کے اندر حکومت کے کوئی افراد شامل نہیں تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے حضرت اماں عائشہ پہ تہمت لگائی اور سردار تھا تہمت کا، وہ اللہ کے رسول نے اس پہ کوڑے کیوں نہیں لگائے؟ اس وجہ سے نہیں لگایا تاکہ اللہ کے یہاں وافر مقدار میں اس کی سزا ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو سزا دے دی جائے تو اس کی سزا آخرت کے اندر ہلکی ہو جائے، اس کا سزا قیامت کے دن کم کر دیا جائے، اس سزا کم نہ ہو، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے اور اس سردار کو دنیا کے اندر سزا نہیں دیا۔ ایسے ہی ہو سکتا انہوں نے ابن زیاد کو سزا نہ دی تاکہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین بھرپور اس کو سزا سے دوچار کرے۔ اور اس سازش کرنے والے وہی سبائی، وہی بلوائی، وہی کوفی تھے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ کی مذمت بیان ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے لشکر، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والی جماعت، اس کو اللہ کے رسول نے فرقہ طاغیہ کہا۔ ہم ایک منٹ کے لیے اسے تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے سوال کرتے ہیں، بھلا بتاؤ سیدنا زبیر کو قتل کیا گیا، سیدنا زبیر کو شہید کیا گیا، اور سیدنا زبیر کس کے لشکر میں تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں۔ اور حضرت زبیر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی کے لشکر میں لشکر والے تھے۔ تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہیں گے جس طرح تم معاویہ پہ تہمت لگاتے ہو کہ عمار بن یاسر علی کے لشکر میں تھے اور ان کو قتل کیا گیا، ان کے قتل کرنے والے کو فرقے باغیہ سے تعبیر کیا گیا، تو حضرت زبیر کے قاتلین کو آپ کیا کہو گے جو معاویہ کے ساتھ تھے؟ قتل کرنے والے سیدنا حسین کے لشکروں میں سے تھے۔ تو یہ وہی سازشی اور سبائی تھے جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا جو معاویہ کے لشکر میں تھے، اور زبیر کو شہید کیا جو علی کے لشکر میں تھے۔ یہی سبائی، یہی بلوائی، یہی خوارج نے مل کر کے اس فتنے کو آگے بڑھایا تھا، اور پڑھ پڑھ کے آج لوگ جو ہے فتنے کے شکار ہو رہے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے اپنے قلوب و اذہان کو گدلا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سازش کو سمجھنے اور جو حقائق ہیں اللہ رب العالمین حقائق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ یہ چند منتشر باتیں تھی جو میں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تاکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، اور جو ہمارے
ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات کے بادل چھائے ہوئے ہیں، وہ بادل چھٹ جائے اور ہم جو ہے حقیقی روایات جو ہیں، صحیح روایات جو ہیں، ان روایات کو کیا کریں، ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔